Good morning, students. So, today we are reading a lesson A House is Not a Home. And the writer of this chapter is Jan Gadasso. Okay, Jan Gadasso is the writer of this chapter. So, what does it mean? A house and a home. House. House is what? House is that is made of bricks, cement, etc. All these things. But a home But a home that is made of what? That is made of the members we are living like father, mothers, and in this home, what we are sharing love and sorrow, whatever the things we all enjoy together. Okay, and in sadness we live also come together. तो हम साथ में रहते हैं. That is home. So home is a place there is a love, okay, and the house is the is what that house is made of cement, beer, stones, wood, all these things. Okay, it means a house is what that is a non-living thing, and a home is a living where we all live and share love each other. So how this chapter this is a chapter. This story reflects the challenge of a being a teenager and problem of a growing up. How does the author overcome his problem? So what happened is, first I will give you some introduction about this. So this story, what this reflects the challenges of a being a teenager, okay, and the problem of growing up. जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, वी आर गोइंग टू बी रीड इन दिस चैप्टर. In our life, sometimes such changes take place that our life becomes intolerable for us, and sometimes we teenager wants to end this life. समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं हमारे लाइफ में, और जो टॉलरेबल नहीं है, बेयर नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते. एट दैट मोमेंट व्हाट वी आर थिंकिंग दैट आवर लाइफ शुड बी नाउ एंड. But again, we find the things change which make us enjoy the life fully. But there is some, what happened after that sadness? There is some changes in our life, and after that, we become very enjoy. We enjoy the life fully. So, in this story, the same things happen with the author. Here, he finds himself in a such an awkward situation when he joins a high school. Awkward situation is a something strange, कुछ अलग सी जो हमारी सिचुएशन हो जाती है. सो आफ्टर सम डेज हिज हाउस कैचेस फायर एंड ही फाइंड्स दैट हिज लाइफ हैज़ एंडेड. व्हाट हैपन? जब हमारा घर ही जल गया तो हम क्या सोचेंगे कि अब तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया. बट व्हेन हिज स्कूल मेट्स शो देयर कंसर्न फॉर हिम, they were very concerned. His whole vision for the life changes. Now first he, when his house was on fire, so he was thinking that his life should be end now. But when there is a concern of their classmates towards him, all the vision for life changes, and he began start taking interest in him, in the life. Now he was totally interested in the life. Means how this change take occurs. Okay, so all these problems we were reading in this chapter. Okay, so my first year of school felt awkward. you need something बहुत परेशानी वाला. Okay, this awkward, परेशान. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. So, what he was in the high school. So that the first year he was very feeling awkward, means बहुत परेशान उसे जो है उसका रहा. एंड आफ्टर लिविंग व्हाट हैपन, जो है जूनियर हाई स्कूल जो है
वो बता रहा है कि मैं जो अपनी क्लास का जो है क्या था, हेड था। और जो है मैं मेरे को ना सीनियरिटी मिली हुई थी, होने के नाते मुझे जो सामान मिलता था ना, और उसे छोड़ने के पश्चात अब वो एक नए स्कूल में चला जाता है, तो उसके साथ है ना कुछ अलग सा शुरुआत होती है। तो यह जो स्कूल है ना, मेरे जो पुराने वाले स्कूल से जो है उससे काफ़ी बड़ा था। और जो उसकी जो भी ना जो उसकी सिचुएशन को जो है, तो उसके लिए बहुत ही जो है क्या है, डिफ़िकल्टीज़ वाला था। तो वहाँ पर मेरे सभी दोस्त जो है अलग अलग जो है स्कूल में जो है चले गए, और मैं बिल्कुल जो है अलग थलग जो है महसूस कर रहा था। आइसोलेटेड मीन्स एकदम अलग थलग यहाँ पर वो महसूस कर रहा था। सो ही चेंज हिज स्कूल। ओके। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. तो वो कह रहा है कि मैं जो अपने ना पुराने जो अपने टीचर्स की याद आती थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए जो है जाया करता था। एज़ यू नो कि जब हम जो है पुराने स्कूल है ना, उसकी बहुत याद आती है, हम उसके बारे में तारीफ़ ही करते रहते हैं। बहुत अच्छा था, वहाँ के टीचर्स अच्छे थे, तो वहाँ मिलने का उसका मन करता था, तो वो चला जाता था। They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new peoples. They have encouraged, अब जो उसके पुराने वाले टीचर्स थे, they used to encourage him. Encourage mean उसको जो है उत्साहित करते थे जो भी कि इन्वॉल्व होना स्कूल में जो भी है उसकी एक्टिविटीज़ में आप जो है पार्टिसिपेट करें, और जो है नए नए जो पीपल्स हैं उनसे मिलें। दे टोल्ड मी दैट इन that time I would adjust and probably end up loving my new schools more than I had by old ones. Now he was telling कि जो है अपने नए स्कूल में जो है पूरे अच्छे से अपने नए जो स्कूल्स हैं उन पे अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, ठीक है, तो वो सब आपको भी लव करने लग जाएंगे। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय। और जब ये ऐसी स्थिति हो जाएगी दैट यू आर मिसिंग, आप उससे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वो स्कूल बहुत अच्छा लगने लग गया, लेकिन फिर हमें जो है ना पुराना जो स्कूल है ना उसको भूल मत जाना, ठीक है। दे मेड मी प्रॉमिस दैट okay, so come to school regularly. I understand psychology in what they were saying, but I took some comforts in it never nonetheless nonetheless means कि जो है अब वो रेगुलर क्या हो गया, अब वो स्कूल जा रहा है, अब क्या होता है धीरे धीरे हमारा साइकोलॉजी क्या हो जाती है, हमें पसंद आने लग जाए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम सभी जो है स्ट्रिंज लगते हैं, वर्ड लिखते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते। तो अब उसके टीचर्स ने उनसे कहा कि ये जो साइकोलॉजी अब उसको कहता है, मुझे समझ में आ गई कि वो ऐसा मुझे क्यों कह रहे थे। नन दी लेस मीन्स कि तदापि मुझे उनसे कुछ जो है अब क्या है राहत अवश्य मिलेगी। मीन्स दे आर इनकरेजिंग कि हमने स्कूल में जाना चाहिए और वहाँ पर अच्छे से मिलजुल कर रहें, और वहाँ पर भी हमें सेम वही प्यार मिलता है, वही रिस्पेक्ट मिलती है जैसे हमारे पुराने स्कूल में होता है। तो ये तो थोड़ा सा टाइम होता है, साइकोलॉजी होती है हमारे माइंड, क्योंकि हम वहाँ पर हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम नए स्कूल में जाएंगे वहाँ पर भी हमें भी अच्छा लगेगा। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room. अब नाउ ऑन संडे आफ्टरनून की बात है, ज़्यादा आई स्टार्टेड हाई स्कूल जो हाई स्कूल शुरू हो गया, वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम में वो जो है बैठा हुआ था और ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड दैट डे वॉज वेरी कोल्ड एंड विंडी, और काफ़ी हवा चल रही थी। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, सो दैट इज़ ए वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, विंटर का सीज़न था। तो इन दैट मोमेंट वी यूज़ टू हैव अ फायर। ओके, तो वहाँ पर फायर प्लेस पे जो है आग लगी हुई थी, जला रखी थी। एज़ यूजुअल माई रेड टैबी मीन्स लाल धारी वाली कैट जो थी उसके पास, नरेटर के पास थी, ठीक है, वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, और वो टॉप ऑफ पेपर्स के ऊपर जो है बैठी हुई थी। एंड
purring loudly and occasionally sweating at my pen for what entertainment sake. ओके, प्योरिंग क्या होती है बेटा? धीमी आवाज़ जो बिल्ली करती है ना धीरे धीरे, तो उसे कहते हैं। एंड स्वेटिंग इज हिटिंग विद अ क्लोज, अपने पंजों के साथ जो है वो क्या कर रही थी, जो है उसको जो हिला रही थी, ठीक है ना। तो जो वो उसके पास जो है जो लाल रेड कलर की जो है धारी वाली जो है बिल्ली उसके कागज़ों के ऊपर जो है बैठी है और वो है ना घुरा रही थी, और कभी कभी जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो है मेरे पेन पर जो है क्या कर रही थी, स्वेटिंग में ना हिट कर रही थी, ठीक है ना। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. Now, how he got that cat? So he was telling she was never far from me. वो मेरे से कभी भी दूर नहीं होती, क्योंकि ये ना उसने क्या किया था, उसको रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू मीन्स उसको बचाया था जब वो छोटी सी बच्ची थी, मतलब छोटी सी बिल्ली थी। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, और उसे पता था कि मुझे एक अच्छी जो है उसको एक द गुड लाइफ जो है देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे, वही जो है राइटर था। तो उसे मालूम है वही बहुत अच्छे से उसे प्यार करता है, उसकी देख रेख करता है, ठीक है। माई मदर kept स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। एंड स्टॉकिंग मीन्स व्हाट बेटा? स्टॉकिंग मीन्स है ना फीडिंग द फायर, फेडिंग द फायर, यानी जो है आग में थोड़ी सी और जो है धीरे टाइम टू टाइम थोड़ी सी और लकड़ी जलाते रहना पड़ता ना, तो इस तरह से वो डालती रहती है ताकि जो है आग ना बुझे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, और स्मेल मीन्स तो उसको ना स्मेल आई कुछ अलग सी कुछ है। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर मैंने ध्यान दिया, स्मोक प्योरिंग इन थ्रू द सिम्स ऑफ द सेलिंग। सिम्स ऑफ द सेलिंग क्या है? सिम्स क्या होती हैं? दरारें। तो दरारें जो है ना छत में से, तो वहाँ से स्मोक जो है आ रही थी। द स्मोक बिगेंस टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड नॉट बियरली सी, और है ना जो है ना धुएं ने क्या कर दिया, फटाफट जो है बहुत ही जल्दी से ही वहाँ पूरे जो है क्या हो गया, घर धुआं धुआं हो गया। ग्रोपिंग मीन्स तलाशना, ग्रोपिंग मीन्स तलाशना, ठीक है। Groping our way to the front door, we all run out into the front yard. Now, अब वहाँ से क्या है, जल्दी जल्दी से फिर हम बाहर आए, एंड वी ऑल रन इन टू द फ्रंट यार्ड, और जो है फ्रंट यार्ड पर आके बाहर हम जो है खड़े हो गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और हम जैसे ही अपना बाहर की तरफ रास्ता जो है की तरफ गए, द होल रूफ वॉज इनगल्फ में जो है घिर गया, ठीक है, इन द फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और जो पूरा घर था उसकी छत थी वो पूरी घिर गई थी धुएं से, आग से, और वो बहुत ही जल्दी से जो है आग फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, और एंड व्हाट राइटर ही just run away to the neighbor so that they call the fire department. While I watched my mother run back into the house, and the writer he saw that जो उसकी मम्मी है वो बाहर आने के बाद फिर से she मूव इन टू द रूम, और वो जो है रूम की तरफ भाग गई। माई मदर दैन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नाउ शी इज़ कैरिंग व्हाट? ए स्मॉल मेटल बॉक्स। तो स्मॉल जो है मेटल बॉक्स में, उसमें बॉक्स में क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसके जो है डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द कीज ऑन द लॉन एंड इन ए ग्रेज्ड स्टेट, इन द ग्रे स्टेट मीन्स पागलपंथी, सन की स्टेट में थी। रन इन टू द हाउस, ये पागलपंथी तो है कि आग लगी हुई है उस घर में, एंड शी इज़ अगेन रनिंग इन टू द हाउस। आई नो वॉट शी वॉज आफ्टर, आई नो वॉट शी वॉज आफ्टर, अब मुझे पता था कि अब शी रैन इन टू द हाउस अगेन, अब वो किस लिए भागी? आई न्यू दैट माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, तो जो राइटर के जो फादर हैं उसकी डेथ हो गई थी जब वो
राइटर यंग था, एंड आई वॉज सर्टन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और ही वॉज, ये कह रहा है सर्टन में निश्चित, और ये वो इस तरह से वो जो है निश्चित थी कि वो जो उसकी फादर की जो है वहाँ पर जो है पिक्चर्स हैं और लेटर्स हैं वो उनको आग में नहीं जलने देगी। दे वर ओनली द थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। और वही ये चीज़ें थी, ऑल दीज थिंग्स दैट जो हैं उसको याद करती हैं अपने पति को। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। स्क्रीम्ड मैंने क्या होता है बेटा, चिल्लाना। वो फिर से जोर से चिल्लाया, मॉम नहीं, अंदर मत जाओ, बिकॉज शी इज़ अगेन रन into the house. Okay, I was about to run after her. अब राइटर है, बच्चा है, तो उसका भी जो है अपनी माँ को भागते हुए नहीं देख सकता, तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। When I felt a large hand hold me back, लेकिन जैसे वो भागने लगा तो किसी ने जो है पीछे से उसको पकड़ लिया। It was a fireman, और किसने पकड़ा, वो एक फायरमैन था। I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks, और जो है वहाँ पर जो गली थी वो सारे जो है फायर ट्रक से भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प होता है पकड़ से, एंड येलिंग मीन्स क्राइंग, और जो है उनकी पकड़ से मैं जो है छूटना चाहता था और मैं चिल्लाए, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। वो कहते हैं आप नहीं समझ सकते, मेरी माँ जो है अंदर है, ठीक है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर रन इन टू द हाउस, और उसके बाद उन्होंने ही हेल्ड मी ऑन टू मी एंड वाइल अदर फायर फाइटर, जो फायर फाइटर थे वो जो है रन इनटू द हाउस, और घर की तरफ भागे। ही नो दैट आई वॉज acting very logically and that if he were to let go I did run. He was right and he was knowing that उसने उसके कैच कर लिया, तो ही वॉज राइट, ठीक है, ये लॉजिक था। इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर, और ये सही है, ठीक है, और वो सही है, आपकी मदर मीन्स दे विल गेट हर, और उसको पकड़ के ले आएंगे। ही सेड, ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और उसके बाद उसने हमें जो है राइटर को जो है किस में, कंबल में रैप कर दिया, ठीक है ना, उसको उड़ा दिया एंड और उसको कार में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट ए फायरमैन अमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, अमर्ज मीन बाहर निकला वहाँ से, तो वहाँ से कार में से इमर्ज होके आया और मेरी माँ को भी वहाँ से खींच कर लेके आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हिज हाउस कैच द फायर। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her, क्योंकि जो है धुआं उसके जो है शरीर में घुस गया था, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक द ब्रीथ, तो उसको मास्क लगाया गया, ऑक्सीजन में जो है मास्क जो है उसको लगाया गया, ठीक है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर व्हेन ही सॉ हर मदर, उसने जैसे अपनी माँ को देखा तो उसने हग किया। हंग मीन्स एम्बेरस मीन्स गले लगाना, उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई गेट आर्ग्यूड विद हर, और मैं उससे जो है बहस करता रहा। आई हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और मुझे मतलब इस चीज़ का डर था कि कभी मैं उसको खो दूँ, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, अब सेट द फायरमैन ने कहा कि अब ये ठीक है। शी जस्ट इनहेल्ड ए लिटिल स्मोक, इनहेल्ड मीने जो है थोड़ी सी क्या है, स्मोक यानी जो है धुआं अंदर चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू द फायर एंड देन ही रैन बैक टू द फाइट द फायर, और उसके बाद फिर से वो जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर चला गया। वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड मैंने क्या होता है, bewildered, घबराया, तो दोनों वहाँ बैठे जो है घबराए हुए बैठे थे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। अब उसे पता है कि हम सिर्फ वहाँ देख सकते हैं, और वो सोच रहा है अब हम, देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मैं अब वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। आफ्टर द 5 hours लेटर, 5 घंटों के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, अब जो है आग जो है बुझ चुकी थी। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन एंड इन दैट फायर हिज हाउस दैट वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन, पूरी तरह से जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, और आई हैड नॉट सीन माई कैट। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ही जस्ट फॉरगेट कि उसकी जो है प्यारी सी एक बिल्ली थी जिसको वो बहुत प्यार करता था, तो वो उसे नहीं दिखाई दी। वेयर वॉज माई कैट,
मेरी जो है बिल्ली कहाँ है? मच टू माई हॉरर, अब उसे बहुत डर लग रहा था। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसने देखा कि वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रही, मुझे नहीं मिलेगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और मेरे को जब भी दिमाग में आया, हिट किया, द न्यू स्कूल, द फायर मैन, माई कैट, एंड न्यू स्कूल के बारे में, द फायर के बारे में, माई कैट में। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और उसके बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और मैं जो मेरे को ये जो लॉस हुआ उसके बारे में जो है वो उस सोच सोच के क्या है वो बहुत रोया। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, तो उसी दिन जो है वापस उनको जो है घर में जाने की जो है परमिशन नहीं दी फायरमैन्स में। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वहाँ पर अभी भी खतरा है, डेड और अलाइव जो है वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट ऑल्सो, अब वो अपनी जो कैट है उसके बिना भी नहीं रह सकता। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, we piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman blankets and made our ways to the grandparents' house to spend the night। तो उसके बाद पाइल्स होता है ढेर लगाना, तो जो है हमने जो है हम कार में जो है बैठ गए और वहाँ क्लोथ्स रखे गए थे और जो भी जो फायरमैन्स के ब्लैंकेट्स थे, ए फ्यू ब्लैंकेट्स वहाँ रखे हुए थे। एंड मेड आवर, और हमें जो है अपने दादाजी के यहाँ जाने के एक रात वहाँ बिताने के लिए हम चले गए। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट, उसके बाद मंडे है तो उसके बाद वो स्कूल गया, ठीक है। आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, और वो वही स्कूल की ड्रेस डाला हुआ था। आई हैड वॉन टू चर्च दैट मॉर्निंग, और वो कह रहा है कि मैं उस दिन जो है सुबह मॉर्निंग में चर्च गया था। बट आई हैड नो शूज़, पर मेरे पास शूज़ नहीं है। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, बिकॉज जब वो आग लगी ना उससे पहले वो क्या कर रहा था, ही वॉज डूइंग द होमवर्क ऑन द डाइनिंग टेबल एंड देर वॉज ए लिटिल किटल कैट ऑल्सो सिटिंग बिसाइड हर, उसके पास ही बैठी हुई थी। तो उसने शूज़ को क्या कर दिया था, किक्ड, यानी उसको निकाल के फेंक दिया था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी जो है उस आग में जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, और इसलिए मुझे अपनी आंटी से जो है टेनिस शूज़ मांगने पड़े। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम द स्कूल, सो वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, जो है क्यों ना मैं आज घर रुक जाऊँ स्कूल से। माई मदर वुड नॉट हेयर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, मैं एम्बेरस्ड मीन्स काफ़ी क्या था, दुखी था सब चीज़ों से। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, वियर्ड मैंने जो है कैसे लग रहे थे, बहुत ही अजीब से लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स, क्योंकि मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और ये सारी चीज़ें मेरी जो है चली गई। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, और मेरी ज़िंदगी जो है आग में जो है जैसे ही वॉज थिंकिंग कि अब मेरा सब कुछ जो है नष्ट हो गया। द मोर आई टायर टू फिट इन द वर्ड्स इट गोट, जैसे जैसे मैं सोचता वैसे वैसे वो जो है वर्ड्स में ना बेकार होता लग रहा था उसको, बहुत क्या हो रहा था, उदास हो रहा था। ही वॉज गेटिंग वेरी मच अपसेट अबाउट इट। वॉज अ डेस्टिनी टू बी इन, सो व्हाट इज़ दैट, बैकपैक, ओके बैग, तो उसका सब कुछ जो है उसमें जल जाता है। सो द मोर आई टायर टू फिट इन द वर्ड्स इट गेट, वॉज आई डेस्टिनी टू बी द आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ, दैट्स what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. Now what happened? अब वो कह रहा कि जो है मेरा सब कुछ जो है, मेरा जो होमवर्क था, मेरी किताबें थी, मेरा स्कूल बैग था, वो सब जो है जल चुका था। तो उस बैग में मेरा क्या था, हिज लाइफ थी, उसका जीवन था। वो कहता है, राइटर कहता है, मैं जितना अधिक स्कूल में सही होने का जो है प्रयास जो करता है, और जो है सरकमस्टांसेस उतनी ही जो है वर्स हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो डेस्टिनी क्या है, भाग्य। तो क्या भाग्य ने मुझे सारा जीवन जो है कैसे जो है निर्वासित कर दिया है, या फिर मैं
फूल के रूप में जीने के लिए बनाया गया, हम जैसे मूर्खों के रूप में बनाया गया था। मुझे तो ऐसा ही जो है वो महसूस कर रहा है। यदि जीवन इसी प्रकार से चलना था कि ऐसा ही चलना था, तो मैं बड़ा होकर जीवन में जो है संभलना नहीं चाहता। ये कोई लाइफ है? मैं तो केवल एक जो है जीवन को समेट कर जो है, अपने जीवन को समेट कर जो है करलब करके मर जाना चाहता हूँ। ठीक है। सो आई वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक ए जॉबी। तो स्कूल में मैं एक जो है करुणाजनक, मेरे ऊपर दया करे व्यक्ति की भांति जो है घूमता रहा। जोमी मीन्स क्या होता है? जोमी मीन्स से एक करुणाजनक व्यक्ति जिसके ऊपर सब दया करे। तो वो कहता कि मैं स्कूल में ऐसे जोमी बनकर जो है घूमूं। सो एवरीथिंग फेल्ट surreal. Surreal means strange. Surreal means what? Strange. Okay. I was not sure that what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been जो है राइप्ड अवे। तो वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ बहुत ही स्क्विरल लग रहा है, विचित्र लग रहा है, और मुझे मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। कितनी जो है सिक्योरिटी है पुराने स्कूल में मेरे जो फ्रेंड्स में, मेरे घर में और मेरी बिल्ली से प्राप्त हुई थी, वो सारी क्या हो गई? राइप्ड अवे हो गई। राइप्ड अवे मीने बिखर गई। राइप्ड अवे मीन्स जो है बिखर जाना। तो उसकी लाइफ क्या हो गई? अब बिखर गई है। वो उसके घर में जो है आग जो है, घर जो है जल के राख हो गया है। सो अब उसे कुछ भी जो है अच्छा नहीं लग रहा। When I walked through what used to be my house after school that day, अब वो कह रहा है कि जो उस दिन से आने के पश्चात मैं उस स्थान पर घूम रहा था जो मेरा घर हुआ करता था। ठीक है। तो मुझे जो है नुकसान का जो आभास हुआ था, जो जला नहीं था, वह क्या था? I was shocked to see how much damage there was. कितना डैमेज हुआ है। Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. अब वो कह रहा है कि जो है कुछ तो जो बचा था ना, बच भी जाता, लेकिन वो भी है ना डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉय मीन्स ख़त्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें जो है वाटर से हो गया है, और कुछ वाटर से हो गया है। ठीक है। और कुछ जो है केमिकल्स से हो गया है, जो उसमें केमिकल लगाया है, तो उससे जो है हमारा सारा सामान और भी जो है डिस्ट्रॉय था। ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉय वर फोटोज़। और जो हमारी सामान जो है और जो डिस्ट्रॉय क्या नहीं हुआ है वो बता रहा है। क्या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ? फ़ोटो, एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। हीरोइकली मतलब उसने जो है, उसकी मदर ने उसे बचा लिया था एक हीरो की तरह। ठीक है ना। तो बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हर। और वो कह रहा है कि मेरी जो है बिल्ली इस आग में जो है पता नहीं कहाँ चलेगी, और मेरे दिल में इस बात के लिए बहुत उसके लिए पेन है। ठीक है। तो उसकी मदर ने जो है ये हीरोइक डिड करके जो है एल्बम है, डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारी पर्सनल जो है आइटम्स उसने जो है आग से बचा ली थी। वो खुद उस आग में जाके अपने घर में से वो निकाल के लेके आई थी। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। ग्रीव क्या होता है बेटा? दुख, पीड़ा। ठीक है। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लीव एंड आई वुड हैव टू बाय सम क्लोथ्स फॉर द स्कूल। अब जो है तो जो मेरी जो मदर है, मुझे जल्दी से जो है घर से बाहर ले आई, और हमें रहने के लिए कोई स्थान जो है अब क्या है ढूंढना था। तो मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने के लिए अब जाना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब उसे कह रहा है कि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या है, कुछ पैसे लेने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड। कुछ भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, कैश है। इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। और जो है आग में सब कुछ जो है जल गया, और जो भी हमारे कैश थे, जो कागज़ थे, क्रेडिट कार्ड, कैश, जो भी आइडेंटिफिकेशन है कि हम जो है बैंक से जो है पैसे निकलवा सकें, वो कुछ भी हमारे पास नहीं है। सभी कुछ क्या हो गया? आग में जल गया, धुआं हो गया। ठीक है।
That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. रूबल्स मीन होता है बेटा मलबा. ओके, रूबल मलबा यानी जो जल जाता है, सब कुछ ढेर हो जाता है, फिर वहाँ क्या बचता है, ठीक है, मलबा. ठीक है. सो दैट वीक द रंबल दैट यूज टू बी अवर हाउस वॉज बीन क्लियर्ड ऑफ द लॉट. और वो जो जिस सो वो रूबल मीन्स वो मलबा वहाँ से जो है क्या किया गया था, तो वहाँ से साफ़ किया जा रहा था. इवन दो वी हैड रेंटेड ए अपार्टमेंट. रेंट मीन्स क्या है, किराए पे. हमने किराए पर नियर बाय जो है हाउस ले लिया था. आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम एंड क्लियर अवे द डेब्रिस. डेब्रिस होता है अगेन जो है रुबल यानी मलबा. ठीक है. होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. और इस आशा से कि मेरी जो है बिल्ली कहीं मिल जाएगी. शी वॉज गॉन. आई कैप थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वेंडरेबल लिटिल कैटल. और मैं जो अपनी जो सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज कैट. ओके. सो venerable little cat, in the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pockets to fall asleep. I was missing her terribly. Now he was telling कि वो मेरे पीछे पीछे क्या है, छोटे से नाजुक से वो उसके बारे में सोचता है. और इन द मॉर्निंग वो मेरे मॉर्निंग के टाइम पे मैं उसे जो है परेशान करता था. वह बिस्तर से बाहर आती थी. वह मेरे पीछे पीछे क्या है, हमेशा वो मेरे पीछे पीछे रहती थी. कभी मेरे कोट पर चढ़ जाती थी और सोने के लिए मेरी जेबों में जो है घुस जाती थी. मुझे उसकी बहुत अधिक याद आ रही है. टेरिबल मीन्स बहुत अधिक याद आ रही है. ठीक है. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज सो डिफरेंट. अब वो कह रहा है कि हमेशा ऐसे ही जो कहता है कि होता है कि जो बुरा समाचार है ना, बड़ी ही जल्दी जो है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है. और मेरे मामले में भी कुछ भिन्न नहीं था. ऐसे ही था जैसे सभी केसेस में होता है. ऐसी ऐसी खबरें सभी को पता लग जाता है. एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई फ्लाइट. फ्लाइट क्या होता है बेटा, दुख, बैड कंडीशन. फ्लाइट मीन्स बैड कंडीशन. तो सभी को जो मेरे स्कूल में हैं, मेरे टीचर्स को भी और मेरे जो है क्लासमेट्स हैं, सभी को इस जो है बैड कंडीशन के बारे में सबको पता लग गया. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल. वट ए वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. सो वॉट एम्बेरस्ड मीन्स क्या होता है, दुखी. सो वो क्या था कि जो अब उसने नया स्कूल ही ज्वाइन किया था और उसके घर में आग लग जाती है. तो तो क्या मतलब अच्छा नहीं हुआ ना. तो काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर कि सब मेरी तरफ सबका ध्यान मेरी तरफ केंद्रित के बारे में उसने नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ हो. ठीक है ना. द नेक्स्ट डे एट द स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअली. तो अगले दिन स्कूल में जो लोग थे ना, हमेशा की बजाय जो है अजीब ढंग से व्यवहार कर रहे थे. और वो अजीब व्यवहार कैसा था. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. जो है लॉकर के पास में मैं जो है क्या कर रहा था, मैं अपनी जिम क्लास के जाने की तैयारी कर रहा था. ठीक है. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. और जो है लोग मेरे जो है मिलिंग मीन्स मेरे जो है इर्द गिर्द जो है इकट्ठे होने लगे. आस्किंग मी टू हरी अप, जल्दी करो. आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, मुझे बड़ा अजीब सा लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. बट इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शॉव मी इन टू द जिम. शॉव मीन्स क्या होता है, पुस्ट हार्ड. ठीक है. शॉव्ड मीन पुश्ड हार्ड. सो व्हाट हैपन. तो बहुत अलग सा व्यवहार कर रहे थे. ठीक है. तो मुझे लगा, कैसा लग रहा था कि वे मुझे जो है बलपूर्वक जिम की ओर जो है धकेलने जा रहे, पुश शॉव कर रहे हैं. तब मुझे इसका कारण जो है पता लगा कि वो मुझे किस लिए ऐसे फोर्स कर रहे हैं. देन आई
देन आई सा वाई देर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ़ ऑन इट। और मैंने वहाँ पर टेबल देखा कि वहाँ पर बहुत सारी काइंड्स ऑफ स्टफ़ वहाँ पर रखा हुआ था जस्ट फॉर मी, और वो सारा कुछ मेरे लिए था। वो उसके अंदर क्या क्या था, दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड ब्रॉट मी स्कूल सप्लाइज, स्कूल की चीज़ों से रिलेटेड जो है वहाँ पर रखा हुआ था टेबल पे। नोटबुक्स थी, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, तरह तरह के कपड़े थे, जीन्स थी, टॉप्स थे, स्वेट शर्ट्स थी, और वहाँ सभी सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। इट वॉज अ लाइक ए क्रिसमस, और ऐसे जैसा लग रहा था जैसे कोई क्रिसमस है जब हमें जो है गिफ्ट्स मिलते हैं ना। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, और मुझे जो है बहुत जो क्या है सो तो इट वॉज़ लाइक ए क्रिसमस, आई वॉज ओवरकम बाय इमोशंस। तो मैं जब वो ऐसा लग रहा था ना, तो कैसा हो गया था, बहुत ही इमोशंस जो मेरे को, जैसे मैं बहुत भावुक हो गया था, ठीक है। तो जो people who had never spoke to me before were coming up to me, introduced themselves. I got all kinds of invitations to their house. Their genuine outpouring of concern really touched me. एंड वॉट हैपन दिस, अब वो कहता है कि मैं बहुत भावुक हो गया है। लोग जो पहले कभी मुझसे बोले भी नहीं थे, अब वो खुद ही अपना परिचय देने के लिए आगे बढ़कर मेरे पास आ रहे थे। मैंने उनके घरों के लिए सभी प्रकार के जो है इनविटेशन प्राप्त किए। उनके द्वारा जो है असली जो है आउटपोरिंग कंसर्न थी ना, चिंताएं थी, प्रदर्शन जो शो कर रहे थे, वो सचमुच जो है मेरे दिल को छू गए, ठीक है। I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. अब उसे जो है इंस्टेंट, उसी क्षण मुझे सचमुच ही एक चैन की सांस उसको ली, और पहली बार यह सोचा कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। उस दिन मेरे जो है क्या बने, मित्र बनाए। ए मंथ लेटर, और एक महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट। और जो है एक महीने के बाद मैंने अपने मकान को जो है फिर से जो है बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज़ डिफरेंट, पर लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो कह रहा है आई वॉज़ नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज़ विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल, अब मेरे दो दोस्त भी थे वहाँ पर। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप to all the wonderful peoples around me. Now I was still sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. ओके, नाउ व्हाट हैपन, अब उसके स्कूल के दो साथी भी थे, उसके मित्र भी थे। तो जो आग लगने के कारण जो है मैंने जो है स्वयं के बारे में ही सोचते रहने की जो है आदत को अब जो है बंद कर दिया था, ठीक है ना। अब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और अपने जो है घर जो है जो बिल्ड बनाया जा रहा था उसको देख रहा था। मैंने अनुभव कैसा किया, एक्सपीरियंस किया कि मेरे जीवन का जो है फिर से जो है पुनर्निर्माण हो रहा था, ठीक है। आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, जैसे मेरा घर बन रहा है ऐसे ही मैं फिर से जो है मेरा भी क्या हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा था। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब, कब होता है बेटा, जो है अवरोध। वेन आई sat on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from the behind and say, तो जिस समय हम वहाँ एक अवरोध पर बैठे हुए थे, क्रम पर बैठे हुए थे, तो मैंने एक नए बेडरूम के बारे में जो है उसने प्लानिंग की, बना रहे थे। तो मैंने किसी को अपने पीछे से चलकर आते हुए सुना, और उसने क्या कहा, डज दिस बिलोंग्स टू यू, क्या ये तुम्हारी है। वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़। जब मैंने यह देखने के लिए पीछे मुड़ा वह कौन था, तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, और एक महिला मेरी बिल्ली को लिए हुए खड़ी थी। ओके, आई लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेंस आर्म। अब उसने क्या किया, ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मीन्स क्या होता है, हैच, स्नैच करना, उसने उसके वहाँ खींच लिया।
और उस बिल्ली थी तो उसने जो है कूद कर छलांग मारकर वो बिल्ली उसकी गो थी ना बाजू में, तो उसमें से जो है उसने ले ली। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. तो उसने क्या किया, तो मैंने उसे जो है पकड़कर जो अपने पास से किया और उसके जो ऑरेंज कलर के थे ना फर, तो बालों में अपना जो है चेहरा लगाकर रो रहा था। शी प्योर्ड हैप्पली, और जो है वह बिल्ली जो है अभी खुशी से जो है बोली, माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, और मेरे जो है दोस्त मुझे हग कर रहे थे। हगिंग द कैट, उस बिल्ली को भी हग कर रहे थे, गले लगा रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और जो है चारों ओर उछल रहे थे। अपारेंटली जो है स्पष्ट थे, अपारेंटली मीन्स स्पष्ट थे। सो माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड मीन्स फ्रिक्ड क्या होता है, फ्राइटन, डर गई। बाय द फायर, अब वो उस दिन की बात बता रहा है। फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रन ओवर ए माइल अवे, वो कोसों दूर जो है चली गई थी। एक हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसके कॉलर पर मेरा जो है फ़ोन नंबर था, ठीक है, फ़ोन नंबर था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, और जो हमारा फ़ोन जो है डिस्ट्रॉयड हो गया था उस आग में, और जो है डिसकनेक्ट हो गया था आग लगने के कारण। दिस वंडरफुल वूमेन took her in the work hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and surely missed. हाँ, वो कह रही है कि उसने उस महिला ने जो है उसे मिली थी, तो उसने भी मतलब पूरी कोशिश की, उसने बहुत मेहनत की, पता नहीं कैसे उसे इस बात का जो है पता लगा। उसने बिल्ली को बहुत ही अधिक से कोई प्यार किया करता था, उसकी बहुत अधिक याद आती होगी। उसने पूरी मतलब कोशिश की कि मैं अब इसको जो है उस तक पहुंचाऊं, क्योंकि उसकी कॉलर पे उसका टेलीफोन नंबर था, ठीक है। तो उसने किस तरह से पूरी कोशिश की और उसके तक पहुंचा दिया। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप। कर्ल्ड मीन्स क्या है, जो है जैसे ही वह अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और मेरी बिल्ली जब मेरी गोद में जो है कर्ल्ड अप हो गई, सिमट कर बैठी थी, तो वो क्या करता है, ऑल आर ओवरवेविंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू बी डिमिनिश। अब जो है अब उसको बिल्ली भी मिल गई है, तो नुकसान और दुखद घटना से संबंधित उसका मन भी जो है भावुक करने वाली घटनाएं जो है कम होती प्रतीत हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंज एंड लॉर्ड प्योर ऑफ माई बिलव्ड कैट। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, तो वो कह रहा है कि मुझे अपने जो है ना अपनी लाइफ से, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अजनबी थे कि जो उनकी जो काइंडनेस शो कर रहे हैं, और मेरी प्यारी बिल्ली के ऊंचे स्वर में जो है जो उसके बारे में जो मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरी बिल्ली मुझे वापस मिल गई थी, और इसी प्रकार से मेरा जीवन भी वापस अपने सही रास्ते पर आ गया था। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ। इन द स्टार्टिंग वो सब कुछ लॉस कर गया था, वो बहुत उदास था। नाउ ही वॉज हैप्पी, अब वो उसकी जो है लाइफ जो है नए ट्रैक पर शुरुआत कर रही है। एंड नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी। थैंक यू।